Good morning, everyone. Today we have with us Dr. Amit Yadav, Assistant Professor, Senior Scale from Manipal University, Jaipur. We welcome you, sir, on behalf of the Brown Foundation. First of Thank all, you. big thanks to you, sir, for joining us on the special occasion of Constitution Day, sir. Now, Thank sir, you. Thank you, Sanidhi. welcome, sir. So now we would like to start with the Viram dialogue. So it's basically a series for the awareness in the society. So my first question is related to Article 15 particularly. Is how ensure that protective provisions under Article 15 continue to empower women while also addressing the concern of reverse discrimination raised by men. Okay, Sanidhi. Thank you so much. Providing me the platform to interact with the peoples uh, on this auspicious day of the Constitution Day. And I think that Viram is doing wonderful job to aware the people, aware the society for their rights and the duties. So, as you asked, Sanit, regarding this Article 15, especially the clause 3, which provide the special provisions for the state, mandate the state to provide the special provisions related to the women and children. So, let me tell you, Sanit, that why this particular clause has been put in the constitution. So, if we see here in India, the condition of women is, as we all know, it's quite miserable. So somehow it is expedient. And if you see over the constitution, so there is a one thing which is a soul of the constitution, or various time it has been also recognized by the Supreme Court that the constitution is something where the reasonable classification is the soul of the constitution. Yes. Why? Because as we know that if you see that India is a multicultural diversity kind of country है ना. हमारे यहाँ क्या है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोस कोस पर भाषा वाणी पानी सब बदलता Yes. रहता है. True, So sir. that's why it's a very important to understand कि क्या हम एक ही यार्ड स्टिक यूज कर सकते हैं to felicitate all religion, all sects, all gender, all ethnicity, all geographical condition of the India. So that's why what I believe that it's a really very wonderful provision given under the Constitution of India कि जो women's हैं और जो children's हैं उनके लिए हम स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए स्टेट को बोला गया है ताकि स्टेट उनको एक मेन स्ट्रीम में जो है लाने के लिए पूरी कोशिश कर पाए. Now the second part of the question that right now nowadays lots of things are there, lots of the news are there कि भाई मेंस जो है वो इसको कंसर्न एक वॉइस उनकी रेज हो रही है कि देयर इज समथिंग लाइक अ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन टू द मेंस. Yes. So let me tell you one thing, Sanid. First and foremost, we have to change our perspective to see the men and the women. अभी हमको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि men और women अगर देखा जाए तो these two are the integrated part of the society. दोनों ही सोसाइटी के इंटीग्रेटेड पार्ट है. और जैसा हम जानते हैं, हम सबके घरों में हम जानते हैं और बहुत मतलब कैजुअली इस बात को कहते भी हैं, बहुत जॉयफुली भी कहते हैं समटाइम कि भाई आपके घर की होम मिनिस्टर. Yes, sir. वो Truly होम said. मिनिस्टर कौन होता है? That's the woman विमेन. of the तो house. समहाउ मतलब इट्स रियली मतलब हार्ड टू इमेजिन अ वर्ड विदाउट अ विमेन और समथिंग लाइक दैट कि अगर आप कहें कि नहीं ये एक रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है, तो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो सकता है जब एक फैमिली के जो कि एक पहला यूनिट है, द फर्स्ट यूनिट है, एक जिसको कहते हैं पहली इकाई है समाज की, फैमिली, सोसाइटी. तो उस फैमिली की विमेन्स को अगर अपलिफ्ट करने के लिए स्टेट के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन है, स्टेट को जो है कुछ रूम दिया गया है ताकि वो कुछ स्पेशल प्रोविजन बना पाए, तो आई बिलीव कि इट इज समथिंग विच इज फॉर द नर्चरमेंट ऑफ द सोसाइटी. वो सोसाइटी के नर्चरमेंट के लिए ज्यादा है और यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन कहीं से इस तरीके का दिखता नहीं. Thank you so much, sir. It's wonderfully like you have elaborated about this gender equality. Now, sir, following up the next Article 16 that ensures equal opportunities in employment. So, being Viram, being an foundation, how we can advocate for safer and more inclusive workplace to align with this constitutional mandate?
Okay. What are your views, sir, on this? Very, very nice question, Sanidhya. Article 16 is really a very, what I can say, it's like, definitely, it's a fundamental right. It's a very key provision of the Constitution. And somehow it reflects the thought of our Constitution makers when they have assembled to make a wonderful Constitution for our wonderful country, कि संविधान क्या होना चाहिए। इतनी मल्टी, और हम जानते हैं अपने पूरी हिस्ट्री से कि जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, संविधान सभा बनी, और उसमें कई सारे जो है संविधानविद जो है इकट्ठा हुए, तो उस समय के अगर वातावरण को समझें, उस समय के सिचुएशन को समझें, तो वो हमारा देश जो है बहुत महत्वपूर्ण निर्णयों से गुजर रहा था, और हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस एक साथ थे। एक तो हमको अचानक से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, बहुत संघर्षों के बाद एक ऐसी आजादी मिली, जो आजादी भी अगर देखा जाए तो क्लियर कट मैंडेट के साथ नहीं मिली। क्यों? क्योंकि आजाद होते ही हमको विभाजन देखना पड़ा, बहुत Yes. सारी नीतियों की वजह से। और शायद संविधान निर्माता जितने भी थे हमारे उस पूरे ग्रुप के जो मेंबर्स थे, उन सब ने ये चीजें देखी, समझी और महसूस किया कि इस डाइवर्सिफाई कंट्री को समझने के लिए, इसके लिए एक संविधान बनाना इतनी आसान बात नहीं है। क्योंकि कैटरिंग ऑल द नीड्स, जहां पर जो है एक ऐसा वर्ग है जो शायद इतना पिछड़ा है कि उसको मतलब बेसिक नीड्स ही नहीं मिल पा रही, रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिल पा रही। और एक ऐसा वर्ग था जो शायद इतना आगे है कि जिसको पता ही नहीं है, मतलब दो समाज के वर्गों के बीच में इतनी बड़ी खाई थी जिसको पाटने का काम संविधान को करना था। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए संविधान में अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 इंट्रोड्यूस किया गया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा ना हो कि कोई वर्ग विशेष जो है वो महज इसलिए चूंकि वो जो है उस अपॉर्चुनिटी तक उसकी पहुंच ज्यादा है और वो उसको पहले प्राप्त कर ले, और कोई ऐसा है मार्जिनल पर्सन है जिसको वो अपॉर्चुनिटी ना मिले है। अब अगर हम बात करते हैं विराम फाउंडेशन की, तो आई एम डेफिनेटली, मैं बहुत टाइम से आप सबको फॉलो भी करता हूँ, एंड ऑल ऑफ यू डू आर डूइंग वेरी वंडरफुल जॉब, स्पेशली फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सोसाइटी एज वेल एज द विमेन। तो दैट्स रियली अ वंडरफुल जॉब। अगर हम विराम फाउंडेशन की बात करें, तो इस फाउंडेशन में अभी असीम संभावनाएं हैं, बहुत आप कह सकते हैं डाइवर्सिफाई फाउंडेशन है। और अगर फाउंडेशन जिस तरीके से अभी काम कर रहा है, हम ऑलरेडी, मैं जो जितना मैंने आप सबकी पोस्ट और लिंक्डइन और बाकी माध्यमों से मुझे सूचना मिलती रहती है, और मैं खुद भी देखता रहता हूँ कि आप जो है किस तरीके से कोर्ट में या अदर फोरम्स पे अवेयर करके लोगों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक कर रहे हैं। और मुझे लगता है इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए जागरूक करना ही इक्वल अपॉर्चुनिटी का इम्प्लीमेंटेशन है। तो अगर फाउंडेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अपनी बात पहुंचा सके कि आपके संवैधानिक अधिकार क्या हैं, आपको हर जगह पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, और जहां कहीं पर भी ऐसी कोई सरकार की व्यवस्थाएं हैं, सरकार की नीतियां हैं जो लोगों तक इस वजह से नहीं पहुंच पा रही हैं क्योंकि लोगों को उसका ज्ञान नहीं है, उसकी सूचना नहीं है। तो ये जो सूचना का ब्रिज है, जो इंफॉर्मेशन ब्रिज है, उसमें विराम फाउंडेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्योंकि सूचना प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है हम कह सकते हैं आज कमोडिटी है। अगर सूचना ही मिल जाए तो शायद उस अवेयरनेस से, उस जागरूकता से लोग अपने इस अधिकार का पूरी तरह से प्रयोग कर पाएंगे। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छी तरह मतलब हम लोग को बताया। हम लोग बिल्कुल उन स्टेप्स को फॉलो भी करेंगे और आगे अपने जो भी फ्यूचर इवेंट्स होंगे बिल्कुल उसमें कैसे भी करके उपयोग करना चाहेंगे सर। श्योर। सर, our next question is related to sir reservation, both the questions. So first question is, sir, what do you think reservation policies and promotions contribute to workplace inequality, and how can such concerns be addressed without undermining affirmative action? ओके। सो देखिए सानिध्य, पहले तो रिजर्वेशन की थोड़ी सी कहानी को हमको समझना पड़ेगा। ऑल्दो नाउ इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियन, और एक बहुत बड़ा संघर्ष इसके लिए रहा। हम अगर बात करें संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे उस समय के दौर की, तो वहां पर स्पेशली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने, जो ऐसे व्यवस्थाओं से, ऐसे परिवेशों से आए थे, ऐसे 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 परिवारों से आए थे कि उनको
बिल्कुल इस बात का एहसास था कि इस समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो मुख्य धारा में आने से वंचित है। चाहे वो उसका कारण जाति रही हो, चाहे उसका कारण जो है उनकी आर्थिक स्थिति रही हो, चाहे उसका कारण उनकी भौगोलिक स्थिति रही हो। और इन सब के विचार में जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इसको बहुत महत्वपूर्णता से समझा। जैसे मैंने अभी पिछली बात में भी बात डिस्कस की थी कि जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, विभिन्नता की बात करते हैं, तो डाइवर्सिटी एक ऐसा विषय है जहां पर एक ही यार्डस्टिक से हम जो है सारे नियमों को नहीं बना सकते। और ये सब जगह होता है। जैसे अगर आप देखेंगे आजकल महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में भी बहुत नित निरंतर नूतन प्रयोग हो रहे हैं। भारत सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर आप देखेंगे, इंडियन नॉलेज सिस्टम को उन्होंने अडॉप्ट किया है। यस। बहुत सारे इस तरीके के विधाएं हैं जिनके बारे में जो है बच्चों को सीखना बहुत जरूरी है, और उसको और फ्लेक्सिबिलिटी बनाई है एजुकेशन सिस्टम में। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एक डाइवर्सिफाई एजुकेशन सिस्टम इंडिया की नीड है। अगर हम डाइवर्सिफाइड एजुकेशन सिस्टम नहीं देंगे, सिर्फ ग्रेडिंग के सिस्टम से या एक ही एग्जाम पैटर्न से हर बच्चे को आकेंगे, तो शायद मुश्किल हो जाएगी। अगर हम ये कहें कि नहीं, जो बच्चा मैथ्स पढ़ता है वही बहुत अच्छा है, या जो साइंस पढ़ता है वो बहुत अच्छा है, या जो ह्यूमैनिटीज पढ़ता है जो अच्छे नंबर लाता है वही बहुत अच्छा है, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर उसकी अपनी विशेष संभावनाएं हैं। तो रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, तो रिजर्वेशन का जो प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, उसका बेसिक पर्पस ही यही था कि जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, जो समाज के ऐसे वर्ग हैं जो अभी मुख्य धारा में आने से रह गए किसी भी सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, उनको राज्य के द्वारा सहायता दी जाए, राज्य के द्वारा उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए, और उसमें रिजर्वेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। लेकिन जैसे जैसे जैसे, और अगर आप देखेंगे तो इनिशियली जो था ये 15 साल के लिए इस तरीके से जो है इसको वहां पे प्रावधान किया गया था। बट धीरे धीरे जब राजनीतिक मंतव्य बनते गए लोगों के, पार्टीज के, विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, तो हम देखते हैं कि रिजर्वेशन जिस उद्देश्य से लाया गया, उस उद्देश्य से उसके जो परिणाम थे वो तो दूर, उसके कुछ और ही अनुप्रयोग होने लगे, कुछ और ही एप्लीकेशन होने लगे, और जिसकी वजह से समाज में एक अलग तरह की जो है आप देखेंगे मतलब समरसता का अभाव होना शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं ये एक गवर्नेंस जो होता है, उस गवर्नेंस की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन, अगर आप दवाइयां हैं जैसे, और बहुत बेहतर दवाइयां हैं, हो सकता है कि कोई दवाई है जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बनाई हुई गई हो, लेकिन अगर उस कैंसर ट्रीटमेंट की दवा को आप किसी ऐसे पेशेंट को दे दें जिसको किसी और चीज की बीमारी है, तो संभवतः वो डिजास्टर होगा। तो दवा अच्छी हो जाना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। दवा किस पेशेंट को दी जा रही है, क्या वो जरूरतमंद को दी जा रही है, या ऐसे किसी पर्सन को दी जा रही है जिसको उसकी आवश्यकता नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेम थिंग हैपन टू द रिजर्वेशन ऑल्सो। रिजर्वेशन के साथ भी यही समस्या है कि क्या वो जिन व्यक्तियों के लिए, जिन वर्गों के लिए जो है अपेक्षित किया गया था, जिन वर्गों को उद्देश्य में रखकर जो है रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई गई थी, क्या उन तक उसका लाभ पहुंच भी पा रहा है, या किसी एक लेयर पर जाकर वो एक आइसोलेशन बन गई, एक वॉल बन गई है। और आज भी अगर आप देखेंगे, जो भारत की गरीबी रेखा है, बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसमें काफी बड़ी संख्या में लोग हैं। उसी बिल्कुल। तरीके से आप देखेंगे कुछ ऐसे सामाजिक गठन है, कुछ ऐसी जातीय गठन है जिनके लोग आज भी मुख्य धारा में आने से बचे हुए हैं। आप जैसे मुसहर नाम की एक जाति है, आप देखिए, आप अगर हम हमारे ट्राइब्स के बारे में बात कर लें, बहुत सारे कल्याणकारी काम हो रहे हैं, लेकिन काम वहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। तो यस। जब तक पूरी तरह से शासन, प्रशासन और सरकारें इस पूरे प्रावधान को उस पूरे फुलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन में नहीं ला पाते, तब तक डेफिनेटली रिजर्वेशन एक पॉलिसी अच्छी है, लेकिन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जो है उस पर कहीं ना कहीं जो है वापस से रीथिंक करने की बहुत जरूरत हाँ सर, इम्प्लीमेंटेशन में इट टेक टाइम्स। है। यस, इट टेक टाइम्स एंड इट गवर्नमेंट। टेक्स सम काइंड ऑफ वी कैन से डेलिब्रेशन। एक या। दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है, एक सोचिता होना बहुत जरूरी है, एक जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक ऐसा परिवार है, कोई ऐसा वर्ग है जो रिजर्वेशन के माध्यम से मुख्य धारा में आ गया है, तो ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, आप देखिए, अगर आप, बहुत एक आश्चर्यजनक प्रश्न है, रिजर्वेशन अभी जो भारत में है जातिगत आधार पे है, और अब आर्थिक आधार पर भी आ गया है। लेकिन अगर हम जातिगत आधार के रिजर्वेशन की बात करें, तो आप मुझे क्या एक कोई जाति का नाम ले सकते हैं जिस जाति के लिए कहा जा सकता है कि पहले ये रिजर्वेशन में थी और अब आप इसको निकाल चुके हैं रिजर्वेशन से, चूंकि ये मुख्य धारा में आ चुकी है, आजादी के 75 साल के ऊपर हो गए।
है ना। बिल्कुल। एक भी जाति का नाम आप मुझे बता दीजिए जिसको रिजर्वेशन दिया गया था और उसको अब रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसी कोई रिपोर्ट या ऐसी कोई व्यवस्था की गई। हाँ, जातियां जुड़ती गई अलग से, जोड़ा तो गया है लेकिन घटाया कुछ नहीं गया है। तो कहीं ना करेक्ट। कहीं अगर देखा जाए तो ये इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है, हाँ है सर। ना। जहां पर लिस्ट रिजर्वेशन देने की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है, लेकिन उससे लाभ प्राप्त करके मुख्य धारा में आने वाली किसी भी जाति का कोई नाम कहीं नहीं है। तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं ये राजनीतिक अभिलाप ज्यादा दिख रहा है, बजाय इसके कि कोई ये संवैधानिक सुधार हो। बिल्कुल सर। Sir, so next question is a follow-up question related to this only. So the question is, how can we shift the focus from reservation to capacity building initiatives that empower marginalized groups without fostering workplace resentment? यस, बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा और बहुत ही रेलिवेंट प्रश्न है ये सानिध्य। देखिए, दो बातें समझिए। अगर हम ये सोचते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ एक जो देश है हमारा भारत, और इतनी मल्टी कल्चरल जो है सेटअप के साथ में है, और अगर देखा जाए नॉट ओनली द मल्टी कल्चरल, अगर हम इकोनॉमिक, अगर आप वो देखेंगे, डिवाइड देखेंगे, तो वो भी बहुत डाइवर्सिफाई है भारत का। तो सिर्फ क्या कोई एक ऐसा फार्मूला हो सकता है, कोई जादू की छड़ी हो सकती है जो इस देश में सब कुछ ठीक कर देगी? क्या इस देश में मार्जिनलाइज पीपल को मुख्य धारा मिला देगी? नहीं। कई सारे ऐसे इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। और देखिए, एक चीज सबसे बड़ी बात समझने की है, हम हर बार अक्सर जो है ज्यादातर बातों में सोचते हैं कि जो भाई हमने सरकार चुनी वो सरकार दोषी है, जो प्रशासन है वो ये काम नहीं कर पा रहा, जो संविधान में अभी संसद में लोग हैं हमारे वो ये काम नहीं कर पा रहे। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते हैं हमारे यहाँ क्या है, फंडामेंटल राइट्स के लिए ह्यू एंड क्राई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बट प्रोबेबली शायद बीइंग गुड सिटीजन, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, अब कहीं ना कहीं उस पर इम्फेसिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम फंडामेंटल ड्यूटीज भूल जाते हैं। whenever बिल्कुल। we cry about the fundamental rights, we never thought about कि what kind of fundamental duties we have, और उसको हमने कितना जो है फॉलो किया हुआ है। अब Right. अगर बात करें हम, बिल्कुल, अभी हम बात करें अगर फॉस्टरिंग की वर्क प्लेस पे, कि कैसे हम सिर्फ रिजर्वेशन नहीं बल्कि उसके अलावा भी, इसमें आप कमाल की बात मैं आपको बताऊं, गांधी जी का जंतर, जिसको गांधी तिलस्मा भी कहते हैं, अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक्स में एकदम पहले पन्ने पे लिखा होता है। और हम लोग उसको एक फॉर्मेलिटी समझ के कभी शायद पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं बच्चे। बस मुझे लगता है कि जब कभी किसी कोर्स को शुरू किया जाए कहीं पे, तो सबसे पहले वो नॉट ओनली लाइक दैट कि उसको एक बस समझा जाए कि एक एनेक्सर है किसी किताब का, और इंट्रोडक्शन में लिखना है, आमुख में लिखना है, तो हमने कर दिया। अगर आप उसको देखें तो उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी गई कि अगर आप कभी जीवन में कोई भी नियम बनाने के लिए सक्षम होते हैं, तो सबसे पहले, या कोई कार्य ऐसा करने के लिए सक्षम होते हैं जिससे कि समाज के किसी तबके पर उसका प्रभाव पड़ने वाला है, तो आप सबसे पहले ये जरूर सोच लीजिए कि आपके द्वारा किए गए काम से वो जो सबसे मार्जिनल, जो हाशिए पे जो खड़ा व्यक्ति है, जो सबसे मार्जिनल पर्सन है, उसके जीवन में क्या कोई बदलाव आने वाला है? अगर हम स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं तो क्या हम वहां तक उस बच्चे को लेकर आ पा रहे हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या वो क्वालिटी एजुकेशन जो एक शहर का बच्चा एक प्रीमियर स्कूल एजुकेशन में पा रहा है, या एक बड़ी महंगी यूनिवर्सिटीज में पा रहा है, क्या किसी भी तरीके से एक वो बच्चा जो कि शायद आर्थिक आधार पे या अपनी जातिगत व्यवस्था के आधार पे, अपने सामाजिक परिवेश के आधार पे ऐसे बड़ी और महंगी यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या उसको वही शिक्षा, वही संसाधन हम दे पा रहे हैं? अगर हम इतना ही कर लेते तो रिजर्वेशन तो फ्यूटाइल है, रिजर्वेशन का तो कोई मतलब नहीं है। रिजर्वेशन इज ए लाइक ए इमरजेंसी ड्रग, जिसको Sure, कि sir. अब हमने रेगुलर जो है ड्रग्स के रूप में, रेगुलर हमने उसको दवाई के रूप में लेना शुरू कर हाँ दिया सर, है। बिल्कुल सर। रिजर्वेशन इज ए काइंड ऑफ इमरजेंसी ड्रग। यस उसका काम था कि अभी नाउ पेशेंट आईसीयू में है, ये देश अभी बन रहा है, और यहाँ मार्जिनल पीपुल्स की रक्षा करने के लिए आगे की सरकारें क्या करने वाली हैं, लोकतंत्र कैसे जाने वाला है, इसके बारे में सोचने के लिए ये कहा गया कि चलिए अभी एक सेफ गार्ड बना देते हैं, और उन्होंने रिजर्वेशन बना दिया। लेकिन हमने क्या किया, उस इमरजेंसी ड्रग का इतना प्रयोग कर लिया है अब कि हमने उसको ऑक्सीजन की तरह लेना शुरू कर दिया। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर हम खाली इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर कर पाते कि उन महाविद्यालयों में, चाहे वो दलित का बच्चा होता, चाहे वो सामान्य वर्ग का बच्चा होता, चाहे वो कितना भी आर्थिक पिछड़े इलाके से आया हुआ बच्चा होता, चाहे वो एक बहुत धनाढ्य वर्ग का बच्चा होता, एक समान एजुकेशन पा पाता, एक समान अपॉर्चुनिटी पा पाता, तो रिजर्वेशन जैसी चीज का कोई वैल्यू है ही नहीं, और ना उसकी किसी डिमांड की जरूरत थी। तो मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि अगर हम वर्क प्लेस पर इस सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम एक ऐसा कंडीसिव इन्वायरमेंट बनाए, एक ट्रेनिंग सिस्टम बनाए, एक
इस तरीके का एजुकेशनल सेटअप बनाए कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इंजॉय करने के लिए इक्वल एबिलिटी तो आए। जब Sure. इक्वल एबिलिटी ही नहीं होगी तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ से इंजॉय करेगा कोई पर्सन। Rightly तो said. वो, तो इक्वल एबिलिटी के लिए इक्वल अपस्किलिंग होनी चाहिए, इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए, इक्वल नॉलेज शेयरिंग होनी चाहिए, नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो these are the things which are very much important, because reservation is a myth, it's only a emergency trap. Thank you so much, sir. And sir, I would like to tell that Viram is also working on upskill trainings, Okay, like weaker segments great. particularly, Okay, very nice, very nice. Thank and you, Sanit. providing them like with the opportunities, scholarships, and all also. Okay, very nice, very nice. And बहुत sir, ही अच्छा है। coming up at the last question, sir, your message to the younger generation and to the upcoming advocates, as you are a law professor. So what your message? ऑल्दो बहुत सारी बातें हमने डिस्कस भी की हैं, और Yes. मैसेजेस बहुत सारे महान लोगों ने हमें दिए हैं। मेरा सिंपल सा एक बात कहनी है कि देखिए, किसी नए मैसेज की जरूरत है नहीं। अगर हम अपनी जड़ों तक लौट पाए, हमारे और खास तौर से जो यंग एडवोकेट्स हैं उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो मैं ये महसूस करता हूँ कि नाउ मतलब जो आज की पीढ़ी है, जो जनरेशन है, जो एडवोकेसी के प्रोफेशन में है, दे आर वंडरफुल, wonderful, they are very much aware, they are very responsible citizens, that's really very good. But somehow in the era of what I can say misinformation, आज जो है ना, एक युग है टेक्नोलॉजी का, एक युग है मिस इन्फॉर्मेशन का युग है। उस मिस इन्फॉर्मेशन से बचे रहना बहुत जरूरी है। एक एडवोकेट का सबसे पहले जो है बेसिक रूल क्या है कि वो ट्रांसपेरेंट हो और किसी भी प्रेजुडिस से फ्री हो। तो जब कब हम अब वही हम बात कह रहे हैं कि जब आप एक एडवोकेसी, और खासतौर से एडवोकेसी, दैट इज मतलब आई थिंक मोस्ट सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन जो मैं समझ पाता हूँ। क्योंकि शायद एक डॉक्टर किसी की जिंदगी बचा ले तो उससे एक परिवार संभल जाता है, एक व्यक्ति का जो है स्वास्थ्य ठीक होता है। लेकिन अगर एडवोकेट अगर अपना जो है न्याय प्राप्त कराने में कहीं फेल होता है या पास होता है, तो उससे एक पूरे के पूरे समाज पे इम्पैक्ट आ जाता है। तो दैट्स वाई मेरा यही कहना है, जो यंग एडवोकेट्स हैं, जो यंग्स हैं, यंग पीपुल्स हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी की तलाश करिए, खूब एक्सप्लोर करिए दुनिया को, है ना, नई चीजों को सीखिए हमेशा। लेकिन जो हमारी परंपरागत व्यवस्थाएं थी, जिनके आधार पर हमारे पूरे समाज का ढांचा खड़ा हुआ है, उनके बारे में भी जानकारी रखना, और अपने संविधान के लिए जो है बिल्कुल जिसको कहते हैं प्रतिबद्ध रहना, अब कमिटेड रहना, ये बहुत जरूरी है। आपको कुछ नहीं करना। लोग कहते हैं कि लाइफ में एक सोसाइटी को अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारे प्लान्स हो सकते हैं। हमारे पास तो पूरी एक बहुत पवित्र किताब है जिसमें एवरीथिंग इज रिटन स्टेप बाय स्टेप कि हाउ यू आर गोइंग टू बी अ वेलफेयर स्टेट, हाउ यू आर गोइंग टू एंजॉय योर फंडामेंटल राइट्स, हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट योर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अगर आप उस किताब को महज किताब ना मान के एक मार्गदर्शक के रूप में अगर आप उसको ले लें, तो मुझे लगता है कि आप खुद ही एक बहुत बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। Thank you so much, sir. It's such a wonderful message to the young generation and to the advocates also. थैंक यू। So here I end the dialogue today. On Thank you, Sanit. It's a really a wonderful conversation, and I am very happy. And I am always eager to interact with all of you peoples. Viram is doing wonderful. Best wishes from my side to the Viram, and happy Constitution Day to everybody. Thank you, sir. Jai Hind, Jai Bharat, sir. Jai Hind.